Dear students, we are honored that Colonel Jaybant Singh ji has spared some time from his hectic schedule to be here. Let me introduce him very briefly. Colonel Jaybant Singh ji has varied experience in the fields of defense, corporate management, communication and social works. He is a postgraduate in journalism and mass communication from Punjab University, Patiala, with a gold medal and a diploma in management from Indian Institute of Management, Pune. He combines in himself the best of management skills, communication skills, and nuances of organizational strategic planning. Colonel Jaybant Singh ji has worked with Indian military and nationalistic organizations in the erstwhile state of Jammu and Kashmir for more than 20 years since 2003. He has played an active role in the build-up of the current situation in the Union territories of J&K and Ladakh. Let me trace his career graph very briefly. He is editor-in-chief of Defense Info, which is a popular web portal on defense news and views. He is chief editor of the Punjab Pulse, a portal dedicated to socio-cultural and economic development of Punjab. He is member of think tanks like CLAWS, USI, Sangios, etc. He is intimately associated with Jammu and Kashmir Study Circle, abbreviated as JKSC. He is executive advisor of Center for Sociocultural Studies, Punjab. Then he is associated with Asian News International (ANI), the largest multimedia news agency in Asia from November 2013 to November 2018, with twin responsibilities as Director of Human Resources, Administration and Legal, and Consultant, Defense and Strategic Affairs. In the domain of journalism, he is syndicated writer with several newspapers and websites for defense and security analysis. On the panel for discussion of major news channels, mainly Lok Sabha, TV, Doordarshan, Times Now, NewsX, and News World. On the panel of all local Punjab news channels, he is an eminent spokesperson. He has authored a book, Jammu and Kashmir, The Tide Turns, published by Lancer Publications. Let me give one tangential uh, focus on his service with the Indian Army. He was commissioned in the Armored Corps and served two regiments, Skinner's Horse and 49th Armored Regiment. His operational service remained in Jammu and Kashmir, Operation Rakshak, then in Sri Lanka, Operation Pavan, then in Northeast, Operation Rhino and Operation Bajrang. With 7 years service with Army Media and Psychological Operation Wings in Headquarters of Northern Command and Army Headquarters. It's a long profile, very illustrious profile, sir. We are really honored you have accepted our humble invitation. Without taking much time, I would like to request you to please come on the dais. So I request the chief guest and the chair for this session, Colonel Jaybant Singh ji, to please come on the dais. I also request the respected registrar of this university, Professor Balwinder Pal Garg ji, to please accompany him. Now I invite all the panelists to please come and take their chairs. The students who wish to give their presentations in this panel discussion. And for the next part of this session, I invite Gopal Goswami, our student, to come and moderate the session. Gopal Goswami. Thank you, sir. I would like to invite our
Chief Guest Colonel Javan Singh ji to share his experience and views with us. Can you hear me behind? सुन सकते हो पीछे? Okay, good. Professor R.P. Tiwari ji, Vice Chancellor of Central University, Punjab, the Honorable Registrar, members of the faculty, and dear students. It is indeed a pleasure for me and a big privilege to be over here with you today and to be speaking on a very, very relevant issue which all of you are totally involved in. I had wanted to come to this university since 2020. जब तिवारी जी आए थे मुझे पता लगा था, मैं इनके कुछ मित्र हैं, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ. फिर कोविड आ गया, फिर थोड़े बिजी हो गए, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मौका मिल गया यहाँ आके आपके साथ रूबरू होने का. टॉपिक भी बहुत अच्छा है. नरेंद्र मोदी एट 20 जो किताब बनी है, और उसके ऊपर मैं जितने अब तक बच्चे बोले हैं, स्टूडेंट्स बोले हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ. आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम दैट दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन व्हाट दे हैव स्पोकन. मेरे पास ये 7 पेज हैं, 7 पेजेस, जो कि मैं उस किताब के ऊपर लिख के लाया हूँ. और almost everything that I have written, they have covered very, very well. So the congrats are well deserved. इसके अलावा मैंने और भी बहुत जगह बोलना है इसके बाद पूरे पंजाब में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दी स्टूडेंट्स कि इन्होंने मुझे कुछ और ऐसी इंसाइट्स दे दी हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर सकूं. अब ज़्यादा तो मेरे बोलने के लिए रहा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सब कुछ बोल दिया है. थोड़ा सा टाइम लेते हुए मैं कुछ और व्यूज़ आपको देता हूँ. पहली बात, आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, पीवी सिंधु ने अपना जो उनका पहला चैप्टर है उसमें पीवी सिंधु ने ये लिखा था कि मोदी जी इज़ अ रोल मॉडल फॉर द यूथ. अब मैं ये देख रहा हूँ कि यस, वाकई ही मोदी जी इज़ अ रोल मॉडल फॉर द यूथ. आप लोगों का उत्साह देख के उनकी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है, पर एक रोल मॉडल का मतलब क्या होता है? एक रोल मॉडल का मतलब होता है कि आप उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच विचार, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने की कोशिश करें और उन्हीं के तहत, उन्हीं के तौर तरीकों के साथ अपनी ज़िंदगी, जो कि आपने आगे एक बहुत लंबी ज़िंदगी अपनी बनानी है, कैरियर्स बनाने हैं, उसको आप उसके लिए उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करें. सो ये होता है एक रोल मॉडल. और अच्छा है ये किताब लिखी गई है, क्योंकि इससे काफ़ी इंसाइट्स मिली हैं कि मोदी जी काम कैसे करते हैं. 2-3 बार मैं पर्सनली मोदी जी को मिला हुआ हूँ. उनके साथ जो काम करते हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं, जानता हूँ मैं अच्छी तरह से कि मोदी जी कैसे काम करते हैं. और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो एक पॉलिसी मोदी जी ने बनाई है हमारे देश के लिए, जो एक विजन उन्होंने खड़ी की है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. दिस इज द विजन दैट वी विल हैव टू फॉलो, एंड दिस इज द विजन दैट ऑल ऑफ यू विल हैव टू फॉलो, बिकॉज आगे आप लोगों ने लीड करना है. हमारा तो टाइम हो गया, हम तो लेक्चर देने लायक ही रह गए अभी जिंदगी में. काम तो आप लोगों ने करना है. फौज में कितने जाएंगे? खड़े हो जाओ. कोई है इधर? कोई नहीं. Not one going for short service, not one going for IMA. Girls, who wants to go out of the girls to the army? कुछ करो. ओके, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट भी जा सकते हैं. Anyway, so you will have to lead, and there is no option. आज के दिन में जो मोदी जी की विजन है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी को भी आगे बढ़ना है तो उसको वो विजन फॉलो करनी पड़ेगी. आज आम आदमी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है आगे बढ़ने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली द पार्टी इज आइडियोलॉजिकली वेरी वीक. और इस तरीके से वो नहीं बढ़ सकती. मैं उसका नहीं निंदा कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस विजन को, मोदी जी को कि विजन के साथ ही भारत आगे चल सकता है, तो आपको इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है.
जो पहला स्पीकर था उसने कहा था समथिंग अबाउट विनिंग इलेक्शंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोदी जी नेवर वर्क्स टू विन इलेक्शंस, ये उनकी सबसे बड़ी खसूसियत है। वो काम करते हैं काम करने के लिए, और वो फिर ये कहते हैं कि भाई हमारा काम देखो और हमें वोट देनी है तो दो, नहीं देनी तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को दे दो। ही इज अ वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन। पर वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के वोटर्स बहुत इंटेलिजेंट हैं, और अगर उनकी पार्टी सही काम करेगी तो हिंदुस्तान के वोटर्स उसको वोट करेंगे। इसीलिए जो इतना ज़्यादा उनके खिलाफ वर्जी इतनी होती है, इतने लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, लेफ्ट लिबरल्स, सूडो इंटेलेक्चुअल्स, इतना बड़ा उनकी कम्युनिकेशन और उनके इंफॉर्मेशन डोमेन के ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, उसका कोई असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनका काम बोलता है। तो अल्टीमेटली जो उनके ओपोजिशन में लोग कहते हैं वो सिर्फ एक रेटोरिक बन जाता है, उसमें कोई दम नहीं होता है। तो ये कहते हुए मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताता हूँ मोदी जी के, जो आपको अपने लिए, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ख्याल रखने चाहिए। पहली बात, मोदी जी शक्ति में बिलीव करते हैं। आप कभी भी देखो, जब भी वो बात करते हैं वो शक्ति की करते हैं। इंसिडेंटली मोदी जी, ये 21 लोगों ने एसेज लिखे हैं। मैंने मोदी जी के ऊपर एक 390 पेज की किताब लिखी हुई है, उनकी अर्ली लाइफ के ऊपर, उनकी फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर। उस किताब का नाम है नरेंद्र भाई मोदी, द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, और उसको कमीशन किया था सुलभ इंटरनेशनल ने। कमीशन उन्होंने किया था, लिखी मैंने है। और मेरे साथ ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी टीम थी, और सुलभ इंटरनेशनल के जो पैटर्न हैं बिंदेश्वर पाठक जी, उनका बहुत उसमें योगदान था, उनका बहुत था, पर उसको अल्टीमेटली उसको अंजाम मैं लेके आया था। सो ये शक्ति पॉलिसी, शक्ति, अपनी जिंदगी में इस वर्ड को बहुत यूज करना शुरू कर दो। मोदी जी करते हैं, आप भी करो, बिकॉज सब कुछ इस शक्ति में पड़ा हुआ है। जल शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, उजरा शक्ति, ज्ञान शक्ति। अभी यहां बैठ के आप लोग ज्ञान शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, और इसका अच्छी तरह से प्रयोग करो, ये आपके काम आएगी। फिर वो मोदी जी क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसको फिर वो विजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उसको वो अप्लाई कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है, किसी एक ने कहा था वो माइक्रो मैनेज करते हैं। एक बार उनका प्रोजेक्ट, सो बेसिकली अभी जो बड़े होशियार ब्यूरोक्रेट्स हैं मोदी जी की गवर्नमेंट में, वो उनके पास जाके कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वो छोटी सी बात कर देते हैं मोदी जी उसको पकड़ लेते हैं, और उसको पकड़ने के बाद वो फिर बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता है। और करना किसको पड़ता है? जिसने बात की होती है। सो ये उनका जो है प्रोजेक्ट और विजन की एक जो, ही इज अ वेरी वेरी गुड लिसनर, सुनते बहुत हैं, और सुन के जो चीज उनको अच्छी लगती है उसके तो फिर वो पीछे पड़ जाते हैं। तो उनके जो 14 विजनरी प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्फेंट मोर्टेलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, क्लीनलीनेस, ट्री प्लांटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, ट्राइबल्स और स्पोर्ट्स। अभी आप देखो इन सब में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा ख्याल ये बिटिया बात कर रही थी, मैं विमेन एम्पावरमेंट का ही बता देता हूँ। विमेन एम्पावरमेंट को डोंट लुक एट इट वन बाय वन, बेटी बचाओ, ये उसका एक होलिस्टिक पैकेज बनाओ। उसका जब एक होलिस्टिक पैकेज बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कड़ियां उसमें डाल के वो कहां पर अंजाम लेके आई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं। साथ में द विमेन टू मेल रेशियो जो कि 922/1000 था, अभी विमेन आर मोर। स्वच्छ भारत उन्होंने पकड़ा, स्वच्छ भारत से उन्होंने टॉयलेट्स बनाने में बहुत ज़्यादा काम किया इन द गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल में उन्होंने टॉयलेट्स बनाए, उससे क्या हुआ, ज़्यादा महिलाओं ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विमेन एजुकेशन, हर जगह विमेन एजुकेशन वाज लैगिंग बिहाइंड, अभी विमेन एजुकेशन जो है वो एट पार पहुंचती जा रही है। मैं होलिस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, मोदी जी काम कैसे करते हैं।
फिर उन्होंने क्या किया, 3-4 बार बोल दिया, ही स्पोक इन सो मैनी ऑफ हिज स्पीचेस, कहते हैं कि अगर आप लड़कों को नहीं रोकते हो तो लड़कियों को क्यों रोकते हो। उससे एक मैसेज गया कि लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स। उस मैसेज का क्या फायदा हुआ? उस मैसेज का ये फायदा हुआ कि अभी 24 घंटे लड़कियां काम कर सकती हैं। रात को उनकी सिक्योरिटी जो है वो जगह जगह कंपनीज को अश्योर करनी पड़ती है। मैं ANI में था, मैंने 25 गाड़ियां रखी हुई थी लड़कियों को लेके आने और लेके जाने के लिए रात को, और बेस्ट ऑफ पीपल में हमने रखे हुए थे, बट उनसे काम करवाते थे हम रात को। सो सिक्योरिटी उन्होंने की। फिर मोटिवेशन उनकी ऐसी है, उनकी मोटिवेशन से आज लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, परमानेंट कमीशन मिल गई है, 2 सुप्रीम कोर्ट जज बन गई हैं, आज से पहले कभी बनी नहीं थी। पार्लियामेंट में देखो लड़कियां किस तरीके से बात करती हैं, औरतें किस तरीके से बात कर रही हैं, कितना खुल के बोलती हैं, कितना खुल के क्वेश्चंस पूछती हैं जो पहले नहीं थी पूछती। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया कि बंदा काम कैसे करता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक पूरे सिस्टम को मिला के एक होलसम पैकेज कैसे निकाला जाता है। इंसान को पता ही नहीं लगता कि कब जो है वो काम हो गया। सिक्योरिटी की बात की थी लड़के ने, बहुत अच्छी बात की थी सिक्योरिटी की जो डोवल जी ने कहा है। मैं एक फौजी हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक फर्म डिसीजन लेनी सिक्योरिटी में, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्पाइरलिंग रिएक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर स्पाइरलिंग रिएक्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री ही बदल जाती है कई बार तो, एक छोटे से ट्रिगर से। और अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हमारा 2.5 फ्रंट की वॉर चलती है, मतलब वी हैव टू फाइट ऑन 2.5 फ्रंट्स, 2 fronts of China and Pakistan and half front of China and Pakistan both. और इसमें भी मोदी जी इज वेरी वेरी क्लियर। वो कहते हैं कि भैया तुम हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये मैसेज सिर्फ, हम तो इतना ही सोचते हैं ना कि वो हमने उरी किया, बालाकोट किया, उसके बाद ईस्टर्न लद्दाख में हमने चाइना के पीछे पड़े तो ये मैसेज चला गया। नहीं, उन्होंने ये मैसेज जो उतने टूर करते हैं आसपास, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कल अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ कोई पंगा लेने की कोशिश की या चाइना ने कोई पंगा लेने की कोशिश की तो उसके बाद जो होगा उसका मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। ये मैसेज जो है ये बहुत क्लियरली मोदी जी ने पूरी दुनिया को दे दिया है। उसी के कारण टेररिज्म के ऊपर थोड़ा कंट्रोल है। कोवर्ट टेररिज्म आजकल चल रही है, स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, हम विजिलेंस से हट नहीं सकते हैं, विजिलेंस तो हमको रखनी पड़ेगी, तो पर काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो अभी बहुत कम टाइम, सब कुछ तो हमने सुन लिया था, मैं कुछ और सिर्फ 2-4 बातें करूंगा मोदी जी के पर्सोना के बारे में, और वो इसलिए नहीं कि मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि वो पर्सोना आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वैसा पर्सोना आपको बनाना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर चलना पड़ेगा, और ये पर्सोना जो है ये इनकी किताब में से निकला है। तो पहली बात तो जो अमिश ने इस किताब में लिखा है, मोदी जी डज नॉट लुक एट द नेशन एज अ नेशन, ही लुक्स एट इंडिया एज अ सिविलाइजेशन। ये बात समझिए, सिविलाइजेशन इसलिए है कि वो कहते हैं दैट वी मस्ट रिमेंबर हु वी आर, इसलिए वो सारा टाइम बातें करते थे, गुरुओं पीरों की बातें करते हैं, बुद्धिस्ट बातें करते हैं, जैन की बातें करते हैं, गुरुओं के इतने पर्व मनाते हैं, बिकॉज ही इज लुकिंग एट थिंग्स एट अ सिविलाइजेशनल एंगल, ही डज नॉट लुक एट इट एज अ नेशनल एंगल। और वो सिविलाइजेशन में से नेशन निकालते हैं, सिविलाइजेशन पहले, नेशन बाद में, दैट इज हिज पॉलिसी। दूसरी बात, मोदी जी इज एन ऑप्टिमिस्ट, आशावादी आदमी है, वो खुद ही कहते हैं, उनका अपना वर्ड है कि मैं तो आशावादी हूं, मैं होप इंस्टिल करनी चाहता हूं दुनिया के अंदर, तो मेरे को पेसिमिज्म अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने ही कहा था, हिंदी में कहा था पर मैं इंग्लिश में बता देता हूं कि वी आर हियर इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने ये अपने एमपीज को कहा था, वी आर हियर इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, वी विल वर्क विद ऑल प्योरिटी, नॉट फॉर द पोस्ट बट फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। इससे उनकी जो थॉट है, उन्होंने जो पार्टी को थॉट दी हुई है
जिस विजन के साथ वो डेमोक्रेसी में गवर्नेंस करनी चाहते हैं वो बड़ी क्लियरली निकल आती है। मोदी जी के अंदर पहले से ही एक स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट बहुत रहा है। छोटी उम्र में वो बाहर चले गए थे, जाके उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद वो चीज़ उनके साथ गड़ गई और उसी चीज़ को लेके उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। जब वो 8 साल के थे उनका आरएसएस प्रवेश हो गया था, बट ऑफिशियली और सीरियसली उन्होंने आरएसएस 21 साल की एज के ऊपर ज्वाइन की थी, 3 साल बाद घूमने के बाद। और तब वो अहमदाबाद केंद्र में गए थे। उनके इनामदार जी उनके मेंटोर थे उधर। बड़ी सिंपल लाइफ लीड करते हैं। सिंपल लाइफ लीड करने के लिए कारण उनमें इनडिफिटेबल एनर्जी है। उससे ये पता लगता है कि ये खाना खुना बंद करो, आप बच्चे जो खाते रहते हो, इससे एनर्जी लेवल कम होता है। ये मैकडोनल्ड मोदी जी का जैसा खाना खाओ, उससे फायदा होगा। इंसान को वो बहुत अच्छा समझते हैं। इंसान क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिलेशन, चारों ओर आप घूम के देखते रहते हो कि जी मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं हैं। 52 इयर्स से पढ़ रहे हैं मोदी जी, क्या क्या नहीं उन्होंने किया आरएसएस में, इमरजेंसी में। उसके बाद वो संगठन मंत्री रहे हैं, उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उसके बाद कहीं चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये आप 20 साल की बात कर रहे हो, उससे 20 साल पहले और भी देखो जो उन्होंने किया है। इसी किताब में लिखा हुआ है कि जब उनको जयशंकर जी वगैरह ने कहा फॉरेन टूर्स लगे, तो आधे देश जहां वो जा रहे थे वो पहले गए हुए थे, और हर देश में उनके पास दोस्त और मित्र थे। ये इतना जो अनुभव है उसको यूज करना बहुत अच्छा है। और वो एक बॉटम अप अप्रोच हमेशा करते हैं। उनका सब कुछ पंचायत से निकलता है, मंडल, पंचायत, बूथ, वहां से निकाल के वो ऊपर लेके जाते हैं। आजकल के ज़माने में कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस ऊपर से नीचे आती है, क्योंकि उनके पास इस टाइम पर अनुभवी लीडर नहीं रहे हैं। अगर उनके पास अनुभवी लीडर हैं तो उनके अनुभव का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो इट इज दिस बॉटम अप अप्रोच विच गिव्स हिम द, उनको वो देती है एक लीड दे देती है। घबराते नहीं, कहीं भी किसी भी क्राइसिस में नहीं घबराते, परमात्मा के ऊपर विश्वास है। कोविड आया, घबराए नहीं। कोविड से उन्होंने सोच लिया कि हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और आत्मनिर्भर का काम उन्होंने कोविड से शुरू कर दिया। कोविड अब तक चल रहा था, आत्मनिर्भर का काम शुरू हो गया था। सो ही एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे चेंज करना है, वो इस चीज में बहुत अच्छे हैं। इशू कभी नहीं छोड़ते मोदी जी, पॉलिटिक्स में भी नहीं छोड़ते, और ऊपर नीचे की बातें नहीं करते, इशू पर ही रहते हैं। सो यू हैव टू लर्न टू फोकस। उनके इशू से आपको सीखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी और इनकरप्टेबिलिटी उनकी तो बिल्कुल ही प्लस पॉइंट्स है, और वो अपने आसपास बहुत होशियार लोगों को रखते हैं। वो सिर्फ अपनी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं डिपेंड करते, अपनी पार्टी के ऊपर नहीं डिपेंड करते। आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया मोदी जी के बारे में। आप में से एक ने मोदी जी बनना है आगे, तो ये सुन लो और ये सब कुछ करने की कोशिश करो। वो सिर्फ ना अपनी पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना वो अपने ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो एडवाइस लेते हैं एकेडमिशियन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से, स्पोर्ट्समैन से। जो उनके पास आ जाता है उसकी एडवाइस सुन लेते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना वो प्लान बनाते हैं। सो ये है मोदी जी का पर्सोना, और इसलिए हमने आज का ये फंक्शन रखी है। इसलिए मोदी एट 20 लिखी गई है, और इसलिए आपको मोदी एट 20 पढ़नी चाहिए, ताकि आप उसमें से ये बातें निकाल के उनको सीखो और वहां पहुंचो जहां मोदी जी हैं इस टाइम के ऊपर। अगर वो पहुंच सकते हैं तो आप सब पहुंच सकते हो, और कल आप ही को मोदी जी बनना है। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्हीं की पॉलिसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन। Thank you very much for your time, and I am very, very grateful and very proud to have come over here. Thank you, sir. Thank you, sir, for your lovely words, lovely and encouraging words. Now, I am inviting our Honorable Vice Chancellor, Professor Raghavendra Prasad Tiwari ji, for his presidential remarks. VC, sir.
लेफ्टिनेंट कर्नल जयवंत सिंह जी, डॉक्टर विपिन पाल सिंह जी, डॉक्टर विनोद पठानिया, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आज इस मोदी जी की किताब पर पैनल डिस्कशन करने के लिए अपने आप को वॉलंटियर किए और अपने अपने चैप्टर का गहन अध्ययन किए और उस चैप्टर का जो सार था, सारांश, वो हम सब लोगों के सामने 10-10 मिनट के अंदर हमारे सभी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति की। सभी विद्यार्थियों, आपने अभी आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुना। उन्होंने जो उद्बोधन दिया वो पुस्तक में जो जानकारी थी उसके साथ साथ उनका स्वयं का अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, दोनों का मिक्सचर, और जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। पुस्तक पढ़ करके आप कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन उस विषय को में के जब आप स्वयं प्राक्षी बनेंगे, उसके गवाह बनेंगे, तो उससे जो बात निकल करके आती है वो उसमें प्रमाणिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे कर्नल साहब ने आज जो बोला उसकी प्रमाणिकता और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने बहुत सारे अनुभवों को, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से संबंधित उनका जो उनके साथ संबंध रहा है, वो उसको बता करके हम लोगों को और ज़्यादा लाभान्वित किया है। आप सबको विदित है कि आज इस पुस्तक पर पैनल डिस्कशन का तीसरा और शायद अंतिम दिन है। मैं आशा करता हूं कि इस विषय के सभी चैप्टर्स कवर हो गए हैं, और जैसा कि मैं उद्घाटन सत्र में भी बोला था कि इस विषय में इस पुस्तक के बारे में चर्चा कराने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज तो ये तथ्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी केवल हमारे देश के ही नहीं, सर्वमान्य नेता केवल देश के ही नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। और विश्व के कई सारे देश उनकी तरफ देखते हैं। विभिन्न जो वैश्विक स्तर के जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उन पर गहनता से विचार करने के लिए, और इसके साथ साथ उन विषयों पर एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि क्या होनी चाहिए, इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विश्व के बहुत सारे नेता गण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सलाह मशविरा करते हैं, उसके बाद ही अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। यह दर्शाता है कि वो केवल देश की नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के सर्वमान्य नेता हैं। नेता, यहाँ शब्द मैं बार बार नेता बोल रहा हूँ, यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल इश्यूज में डिसीजन लेने में क्षमता रखती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन का ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जिनमें उनको महारथ न हासिल हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 8 वर्षों से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके जितने भी निर्णय, जितने भी नीति निर्धारण उन्होंने किया, जितने भी उन्होंने निर्णय लिए, वो हमारे समाज के सामाजिक आर्थिक स्थिति को एक समग्रता की दृष्टि से देखने के बाद उन्होंने निर्णय लिया। और खासकर आप देखें कि जो हमारे देश के जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने कितनी सारी योजनाएं चलाई। योजना का कंसेप्चुअलाइजेशन करना और एक ऐसी इफेक्टिव योजना बनाना जो इफेक्टिव हो, जिसको धरातल पर उतारा जा सके, ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई। पीपल सेंट्रिक योजनाएं, उनको इम्प्लीमेंट किए और इम्प्लीमेंट करने के बाद उनकी मॉनिटरिंग की कि वो इम्प्लीमेंट किस हद तक इम्प्लीमेंट हुए हैं, और इन सभी योजनाओं का लाभ
जिनको मिलना चाहिए, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको मिला है कि नहीं, यहाँ तक वो गए। केवल योजना बना करके उसको छोड़ नहीं दिए, उसको लागू करवाया, उसकी मॉनिटरिंग करवाई और उसका कितना लाभ मिला जनता को, इसका भी असेसमेंट उन्होंने, उनकी सभी योजनाओं का असेसमेंट हुआ है इंप्लीमेंट होने के बाद। तो एक कंप्लीट जो पैकेज होता है जनता को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी योजना का, उन सब का किए। और साथ में देखिए कि केवल पॉलिटिकल डिसीजंस ही नहीं, इकोनॉमिक डिसीजंस उनकी देखिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए, उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे चलते रहते हैं, उनके बारे में भारतवर्ष की क्या स्पष्टता, क्या स्पष्ट नीति होनी चाहिए, वो स्पष्ट नीति हर एक क्षेत्र में उन्होंने दी। और इसके साथ साथ जो आज का बहुत बड़ा संकट मानव समाज के सामने है, जो क्लाइमेट चेंज का, और उसको मिटिगेट करने के लिए क्या हमारे उद्देश्य होने चाहिए, हमारे क्या कार्यक्रम होने चाहिए, उन सब चीजों का, स्वच्छता का आप ले लीजिए, सभी को जल उपलब्ध कराना, सभी को घर उपलब्ध कराना, सभी को रसोई गैस उपलब्ध कराना, जो पीपुल सेंट्रिक। आप सबको विदित है कि हमारा भारतवर्ष देश एक वेलफेयर स्टेट जिसको हम बोलते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात बताई है, एक तो है कि नेशन स्टेट, दूसरा है कल्चरल स्टेट। हमारे आज के मुख्य अतिथि ने, आपने शायद मार्क किया हो गया, उन्होंने इस विषय को रखा कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा भारतवर्ष केवल कुछ राज्यों का एग्लोमेरेशन नहीं है, बल्कि इसमें नॉर्थ से लेकर के एक्सट्रीम नॉर्थ से एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम ईस्ट से एक्सट्रीम वेस्ट, जो ये इतना बड़ा भूखंड जो भारतवर्ष का, जो एक कल्चराइजेशन प्रोसेस से गया है, गुजरा है, उसमें कितनी ज्यादा समानता है। और जो हमारे जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो कितने ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, वो मानव समाज के उत्थान के लिए कितने ज्यादा आवश्यक है। यदि असम में शंकरदेव हुए अपनी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए, और उसके पहले केरल में यदि आचार्य शंकर हुए हमारे कल्चराइजेशन को पुनर्स्थापित करने के लिए, तो पंजाब में 10 गुरुओं ने वही काम किया। और बहुत ही प्रमुखता से हमारे लिए हमारा समाज और हमारा देश और हर एक नागरिक, देश का हर एक नागरिक किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करे, किस तरह से एक दूसरे के साथ सहयोग करके, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा करके, और एक दूसरे के साथ किस तरह से सामंजस्य बना करके अपना जीवन यापन करे, जिससे हमारी भारतीय सभ्यता, जो चिर पुराचित भारतीय सभ्यता जिसको हम सनातन संस्कृति के नाम से जानते हैं, वो हमेशा इसी तरह ज्ञान की गंगा बहाते हुए केवल हमारे देश के नागरिकों का ही मार्गदर्शन नहीं करे, बल्कि विश्व के सभी लोगों का, सभी समाजों का मार्गदर्शन करे। हमारी सोच, जो भारतीय सोच है, जो थी और अभी भी है, वो केवल अपने देश के नागरिकों के ही सुरक्षा या उनकी ही खुशहाली के लिए नहीं है। हमारी सभ्यता की शुरुआत में ही हमारे जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो विश्व बंधुत्व की भावना से हमें ओतप्रोत करते हैं, और हमें विश्व बंधुत्व की भावना के साथ अपना जीवन निर्वाह करने, सभी की खुशहाली के कामना के लिए ये हमारी संस्कृति ये रही है। तो उसी पैराडाइम पर हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, पॉलिसी फार्मूलेशन से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन तक, वो सब हमारे भारतीय संस्कृति के जो सिविलाइजेशन ट्रेड्स हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं को और ज़्यादा इनरिच करने के लिए है। इसलिए इस विषय पर बातचीत कराना, पैनल डिस्कस कराना, और उससे भी महत्वपूर्ण कि विद्यार्थियों को अवसर देना इस पुस्तक के बारे में अपना विचार रखने के लिए, और इसका जो सार निकले, जो सारांश हो, इससे जब हम कोई किसी भी विषय पर बातचीत कराते हैं, विचार विमर्श कराते हैं, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि उसमें हमें सीखने लायक चीज़ें क्या हैं और हम कैसे उन चीज़ों को अपने आचरण में, स्वयं के आचरण में उसको लाएं, और उस
उस ध्येय को जिए। इनका एक जो सबसे बड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो है कि ये बहुत जिद्दी हैं, एक निर्णय लेते हैं, एक टारगेट रखते हैं और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, समाज को उस स्थान तक ले जाने के लिए, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सुरक्षा हो, या कि समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं उनका उन्मूलन हो, उसके लिए एक निश्चित उसको एक टारगेट बनाते हैं, उसके लिए एक निश्चित मापदंड बनाते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए वो पूरे प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा यह है कि हमारे हर एक विद्यार्थी को एक अपना उद्देश्य बनाना चाहिए जीवन का, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हम सब का जीवन सफल बने और हमारे देश की कश्मीर से लेकर के केरल तक और असम से लेकर के पंजाब तक जितने भी विभिन्न संस्कृतियां हुई हैं उनको समाहित करते हुए एक कॉमन संस्कृति के साथ हम आगे बढ़े, जिससे हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण मानव समाज का, संपूर्ण वैश्विक मानव समाज का कल्याण हो। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा संदेश है और इस संदेश को हम सबको आत्मसात करना चाहिए। मैं कर्नल साहब का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, और अपने विचारों से इस पुस्तक के बारे में हम सब लोगों को अच्छी तरह से भली बात परिचित कराया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विभिन्न आयामों को, उनके गुणों को हम सब लोगों के सामने रखते हुए हम सब लोगों को प्रेरित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः डॉक्टर विपिन पाल सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार और आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना मेहनत करके 3 दिन का कार्यक्रम कराया, और हमारे विद्यार्थियों को, जिन्होंने, आज तो सभी विद्यार्थी थे, इसके पहले भी पैनल डिस्कशन में हमारे विद्यार्थी थे, और आप सब लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम की सफल बनाए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, VC sir. Now I am requesting VC sir to please facilitate our chief guest with our university memento. हमारे गुरुओं के ऊपर ये इसलिए लोग ज़्यादा तो उनके लिए गुरुओं के ऊपर